یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی سائرہ کی جو بے حد خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ایک جن اس پر عاشق ہو گیا۔ سائرہ شام کو داتا دربار پر پھول اور تسبیح بیچنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ اس دن بھی وہ اپنا سامان سمیٹ کر گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ اچانک ایک نوجوان خوبصورت لڑکا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ لڑکی پہلے تو گھبرا گئی، لیکن پھر اس نے ہمت کر کے پوچھا، دربار تو بند ہو چکا ہے، آپ کو پھول کس لیے چاہیے؟ لڑکے نے جواب دیا، جناب میرا تو یہی وقت ہے دربار پر آنے کا، میں اسی وقت حاضری دینے کے لیے آتا ہوں۔ لڑکی کو یہ بات بہت عجیب لگی، کیونکہ اس نے پہلے کبھی بھی اس وقت اس لڑکے کو یہاں نہیں دیکھا تھا، مگر وہ جتنی جلدی ہو سکتی تھی گھر پہنچنا چاہتی تھی، اس لیے زیادہ سوال نہیں کیے۔ لڑکے نے پھولوں کے پیسے دینے کی کوشش کی، لیکن لڑکی نے پیسے لینے سے انکار کر دیا اور وہاں سے جلدی سے نکل پڑی۔ راستے میں اندھیرا ہونے لگا تھا اور لڑکی کو اچانک احساس ہوا کہ جیسے کوئی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ تبھی عجیب سی گہری آواز آئی، اپنا حجاب تو ٹھیک کرو۔ لڑکی ڈر گئی مگر آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے گھبراتے ہوئے حجاب سنبھالا اور تیزی سے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ امی نے دروازہ کھولا اور لڑکی کا ڈرا ہوا چہرہ دیکھ کر گھبرا سی گئی، کیا ہوا؟ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ مگر لڑکی نے کچھ نہیں بتایا۔ اسے پتا تھا کہ اگر اس نے سچائی بتائی تو امی اسے پھر سے کام پر نہیں جانے دیں گی۔ اس نے بس اتنا کہا، امی آپ ہی تو کہتی ہو کہ مغرب کے بعد گھر آ جایا کرو۔ اس رات لڑکی کو ایک عجیب سا خواب بھی آیا، ایک دھندلا سا چہرہ، غصے سے بھری آنکھیں اور وہی آواز تھی، آج کے بعد تمہارے سر سے حجاب نہ اترے۔ ڈر کے مارے اس کی نیند سے بیدار ہو گئی اور تبھی اذان کی آواز آئی۔ لڑکی نے راحت کی سانس لی اور وضو کرنے چلی گئی۔ نماز کے دوران اسے ایک میٹھی خوبصورت سی خوشبو محسوس ہوئی۔ جب اس نے امی سے پوچھا تو انہوں نے کہا، مجھے تو کوئی خوشبو نہیں آ رہی۔ صبح جب لڑکی دربار پر پہنچی تو وہاں کا ماحول کچھ عجیب سا تھا۔ عام طور پر وہاں لوگوں کا رش لگا ہوتا تھا، مگر آج ویرانی تھی۔ پھر اچانک کافی رش پڑ گیا اور لڑکی کی دکان پر اتنے گاہک آ گئے کہ اس کا سارا سامان چند منٹوں میں ہی بک گیا۔ مگر پھر وہی نوجوان اس کے سامنے کھڑا تھا، کچھ پھول مل سکتے ہیں؟ لڑکی نے کہا، آج تو سارا سامان بک چکا ہے۔ لڑکا ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ایک بار دیکھ لیجئے، شاید میرے لیے کچھ بچا ہوا ہو۔ لڑکی نے حیرت سے خالی جگہ کی طرف دیکھا جہاں اس کا سارا سامان بک چکا تھا، مگر جب اس نے پھر دیکھا تو پورا سامان وہاں جوں کاتوں پڑا ہوا تھا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ لڑکا مسکرایا اور کہا، اب تو پھول دے دیں گی نا؟ لڑکی نے چپ چاپ پھول نکال کر اسے دیے۔ جاتے جاتے لڑکے نے ایک بات اور کہی، ہر بات پر پریشان ہونا چھوڑ دو اور تمہاری امی جہاں شادی کرنے کا کہہ رہی ہے وہیں کر لو، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ لڑکی خاموش کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ یہ شخص آخر کون تھا؟ وہ لڑکا اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا، لیکن وہ لڑکی اس کی بات سن کر اپنی جگہ پر کھڑی رہ گئی۔ اس کے ذہن میں بس یہی سوال گھوم رہا تھا کہ آخر اسے یہ کیسے پتا چلا کہ آج اس کے رشتے والے آ رہے ہیں۔ اس نے اپنے ذہن سے اس بات کو نکال کر اپنا سامان اٹھایا اور گھر کی طرف چلی گئی۔ راستے بھر اس کے کانوں میں ایک ہی آواز گونجتی رہی، واجد جن، واجد جن۔ اس نے کہا تھا جب جب یہ نام پکارو گی تمہاری مدد ہو جایا کرے گی۔ ایک عجیب سا خوف اس کے جسم پر طاری تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا معاملہ ہو رہا ہے، آخر یہ واجد جن کون ہے؟ اسے اس پر تجسس بھی تھا مگر ڈر اس کے ذہن پر حاوی تھا۔ وہ جلدی سے گھر پہنچی۔ گھر پہنچتے ہی دیکھا کہ مہمان آئے ہوئے ہیں۔ امی نے اسے آواز دی، مہمان آ چکے ہیں، جلدی سے کپڑے بدل کر یہاں آ جاؤ۔ مہمانوں کی خبر سنتے ہی وہ سب کچھ بھول گئی۔ وہ اپنی کمرے میں گئی اور جلدی سے کپڑے تبدیل کیے۔ جب وہ مہمانوں کے سامنے آئی تو اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ تبھی ایک عورت کی آواز آئی، یہ تو بہت خوبصورت بچی ہے۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ عورت پھر بولی، واجد تمہیں سائرہ کیسی لگی؟ واجد، یہ نام سنتے ہی سائرہ کے دماغ میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ اس نے جلدی سے نظریں اٹھائیں اور سامنے دیکھا تو حیرت سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ وہی لڑکا تھا جو ہر روز مغرب کے وقت دکان پر سامان لینے کے لیے آیا کرتا تھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس کی زبان سے اچانک نکل پڑا، امی، یہ تو وہی واجد ہے۔ امی اور مہمان بھی حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ امی نے حیرانی سے پوچھا، کون سا لڑکا؟ سائرہ کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی، اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔
वो अपने मन को समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये वही लड़का कैसे हो सकता है। ये वही था जिसने कल रात उससे कहा था, हर बात पर परेशान होना छोड़ दो और जहां अम्मी के रही हैं वहीं शादी कर लो। वाजिद हल्के से मुस्कुराया और बोला, सायरा, अब तो तुम मुझे पहचान गई हो। इसकी इस बात पर सायरा का खून जैसे जम गया। उसने किसी तरह खुद को संभालने और बोलने की कोशिश की, तुम कौन हो? वाजिद ने उसकी आंखों की गहराई में देखा और कहा, मैं वो हूं जो तुम्हारी हर आवाज पर तुम्हारे साथ होगा। जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, जब भी तुम वाजिद जिन पुकारोगी, मैं तुम्हारी मदद को आ जाया करूंगा। सायरा की सांसें तेज हो गईं, उसके हाथ पांव ठंडे हो गए थे। उसे अब समझ आ रहा था कि पिछले कुछ दिनों से उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था वो कोई आम बात नहीं थी। वो सोचने लगी, क्या ये इंसान है भी या नहीं? क्या ये वाकई जिन है? अम्मी और बाकी सारे घर वालों को कुछ समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने उसे एक आम रिश्ता समझा हुआ था, लेकिन सायरा की हालत देखकर अम्मी ने आहिस्ता से पूछा, बेटी क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? सायरा ने जवाब देने के लिए बोलने की कोशिश की, मगर अल्फाज गले में अटक गए। उसकी आंखें वाजिद पर टिकी हुई थीं, जो अब भी इसी अजीब मुस्कुराहट के साथ उसे देख रहा था। इस लड़के की माँ फौरन बोली, बेटी तुम किसी और की बात तो नहीं कर रही? क्या तुम्हें कोई और पसंद है? उसने घबराकर ना में सर हिला दिया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इस औरत ने मुस्कुराकर कहा, तो ठीक है, हम आज ही शादी की तारीख पक्की करते हैं। हमें जल्द से जल्द शादी करनी है। हमारा एक ही बेटा है और हमें उसकी शादी का बहुत शौक है। अम्मी भी मुस्कुरा दें, मेरी भी बेटी सबसे बड़ी है। मैं भी उसकी शादी के लिए बहुत फिक्रमंद थी। लेकिन सायरा के दिमाग में अब भी वही आवाजें गूंज रही थीं, वाजिद जिन। इसका दिल कह रहा था कि ये कोई मामूली बात नहीं, लेकिन आखिर ये मामला क्या है? सायरा समझ नहीं पा रही थी और अजीब सी कश्मकश में थी। उसे ख्याल आया कि क्यों न वो अपने अल्लाह से मदद मांगे, लेकिन उस वक्त घर में सब जाग रहे थे। उसने फैसला किया कि तहज्जुद के वक्त दुआ करूंगी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो उसी कमरे में चली गई जहां कोई नहीं जाता था। अम्मी ने वहां घर का कुछ सामान रखा हुआ था। उसने चीजों को हटाकर थोड़ी सी जगह बनाई ताकि वहां नमाज पढ़ सके। तहज्जुद की नमाज अदा करते वक्त उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके साथ कोई और भी इबादत कर रहा है। जब वो कुरानी आयात पढ़ रही थी तो कोई और भी उसके साथ साथ उन्हें पढ़ रहा था। वो डर रही थी, लेकिन उसने नमाज नहीं तोड़ी। इसके दिल में इतना यकीन था कि जो भी ये वजूद है नेक रूह है, वरना वो उसके साथ नमाज न पढ़ रहा होता। उसने जल्दी से नमाज पूरी की और दुआ के लिए हाथ उठाए। तभी इसे एक धीमी सरगोशी सी सुनाई दी, अपनी दुआ लंबी कर लो और अपने लिए बेहतरी मांगो, तुम्हें वही कुछ मिलेगा जो तुम चाहोगी। उसे इस आवाज से एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। उसके दिल को बेहद सुकून आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो हमेशा इसी आवाज को सुनती रहे। उसने अपनी दुआ को बहुत लंबा कर लिया, अपने नसीब की बेहतरी मांगी, हर वो चीज मांगी जिसकी वो ख्वाहिश कर रही थी। उसे यकीन हो रहा था कि इसकी हर दुआ अल्लाह पाक ने कबूल कर ली है। फिर उसने दुआ में ये भी मांगा, अगर वाजिद मेरे हक में बेहतर है तो मेरी इससे शादी हो जाए। लेकिन बार बार वाजिद जिनकी आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं, वो सोच ही रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी उसने अपना चेहरा हाथ से पूछा और जैसे ही पीछे मुड़ी, इसके होश उड़ गए। इसके ठीक पीछे वाजिद खड़ा था। उसके मुंह से एक चीख निकल गई, तुम उस वक्त यहाँ? सितारा, वाजिद मुस्कुराया, मैं अंधेरे में ही आता हूँ। मुझे अंधेरा बहुत पसंद है। और तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? तुम्हारी और मेरी अब शादी होने वाली है। मेरा पूरा घर अंधेरे में डूबा रहता है, तुम वहाँ कैसे रहोगी? इसकी बातें अजीब थीं। वो लड़की कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने कांपते हुए कहा, तुमसे मुझे डर महसूस हो रहा है। तुम यहाँ कैसे आए? दरवाज़ा तो बाहर से बंद था। वाजिद हल्का सा हंसा, जिन्हों को दरवाजे खोलने की जरूरत नहीं होती। वो लड़की उसे देखती रह गई। उसने ना में सर हिलाया, नहीं, ये मुमकिन नहीं। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? तुम एक जिन हो। नहीं, मैं एक जिन से शादी नहीं कर सकती। वाजिद ने गहरी नजरों से उसे देखा, अभी तो तुम्हें सुकून महसूस हो रहा था, अब मैंने तुम्हें सच बता दिया तो तुम डरने लगी। मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बल्कि तुम तो मुझे बहुत पसंद हो। तुम्हारा ये हिजाब जो हर वक्त तुम्हारे सर पर रहता है, मुझे उससे बहुत मोहब्बत है। इस लड़की के रोंगटे खड़े हो गए। हमारा रिश्ता आसमान पर तय हो चुका है, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। वो घबरा कर तेजी से कमरे से बाहर भागी। इसके होश उड़े हुए थे। भागते हुए वो अपनी माँ से टकरा गई। अम्मी घबरा गई, क्या हुआ तुम्हें? कहाँ भाग रही हो? क्या कोई जिन देख लिया है? वो कांपती हुई बोली, अम्मी,
कमरे में वाजिद वहाँ है। अम्मी ने हैरानी से कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, वाजिद वहाँ कैसे आ सकता है? तुम कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो? उसने कांपते हुए कहा, अम्मी वो इंसान नहीं है, वो जिन है, इसने मुझे खुद बताया। इतना सुनते ही माँ के चेहरे का रंग बदल गया। माँ ने गुस्से में उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा और कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या बकवास कर रही हो? तुम होश में तो हो? अम्मी के थप्पड़ की गूंज अब भी उसके कानों में थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो चुप थी। जिस माँ ने उसे हमेशा प्यार किया, आज वही उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं कर रही थी। उसका दिल भारी हो गया था। वो चुपचाप कमरे से बाहर गई और अपने काम में लग गई, मगर इसके जहन में बस एक ही सवाल था, आखिर वाजिद चाहता क्या है? वो कौन है? सबसे ज्यादा तकलीफ उसे इस बात की थी कि अम्मी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। अगली सुबह भी जब वो अपने कमरे में नमाज पढ़ रही थी, अचानक वही आवाज उसके कानों में गूंजी, सायरा, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई, अब तुम मेरी हो। सायरा अगली सुबह काम पर जाने के लिए निकली। रास्ते में उसे एक बाग नजर आया जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत था और इसमें एक बहुत ही खूबसूरत बुजुर्ग बैठे हुए थे। सायरा ने कहा कि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, आप तो ऐसे जैसे इस दुनिया के लगते ही नहीं हैं। वो बुजुर्ग बोले कि तुमने ठीक पहचाना, मैं शाही जिन हूँ, अपनी जिन्नों की सल्तनत का बादशाह हूँ। मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। मेरे बेटे ने तुम्हें बहुत ज्यादा तंग किया है, उसकी ये सजा बनती है कि मैं उसको अपनी सल्तनत से निकाल दूं। अगर तुम उसे माफ नहीं करोगी तो मुझे उसे अपने सल्तनत से निकालना पड़ेगा। मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ कि तुम मेरे बेटे को माफ कर दो। दरअसल हमारी सल्तनत को एक बद्दुआ है जिससे हमारी सल्तनत में अंधेरा छाया हुआ है। अगर कोई नेक इंसान किसी जिन से शादी करे तभी वो बद्दुआ खत्म हो सकती है। इसलिए मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो ताकि हम इस बद्दुआ से बच सकें। तुम एक नेक लड़की हो और मेरी इस बात को जरूर समझोगी। मुझे अपने बाप की तरह समझो और मेरी बात को समझने की कोशिश करो और हमें इस बद्दुआ से निकाल दो। लड़की ने हाँ में सर हिलाया और वो मान गई। थोड़ी देर के लिए उसने आंखें बंद की और जब आंखें खोली तो वो देखकर हैरान हो गई कि वो बाग, फूल और बुजुर्ग गायब हो चुके हैं और वो कचरे के ढेर पर बैठी हुई थी। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। एक औरत उसके पास खड़ी थी। उसने कहा कि लड़की, तुम कितनी खूबसूरत हो और कचरे के ढेर पर क्या कर रही हो? सायरा ने अपने कपड़े साफ किए और घर की तरफ दौड़ लगा दी। घर जाकर सायरा ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और जोर जोर से रोने लगी। इसकी माँ बाहर से आवाज दे रही थी कि सायरा, दरवाजा खोलो, क्या बात है, मुझे बताओ। लेकिन सारा मुसलसल रोती जा रही थी और फिर उसने दरवाजा खोला और सारी बात अपनी माँ को सुनाई। माँ ने कहा कि हम सुबह 7 वाली मस्जिद के कारी साहब के पास चलेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये क्या मामला है। वो हमें इसके हल के बारे में बताएंगे। अगली सुबह सायरा और उसकी माँ कारी साहब के पास पहुंची और अपनी सारी बात बताई तो कारी साहब ने कहा, सायरा, वो तो नेक जिन है, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उस पर कारी साहब ने उसको तहज्जुद के वक्त सूरह जिन पढ़ने का कहा। सायरा ने मुसलसल कारी साहब के बताए हुए तरीके के मुताबिक हर रोज तहज्जुद के बाद सूरह जिन पढ़ना अपना मामूल बना लिया। इस रात सायरा को ख्वाब आया कि वाजिद जिन उससे कह रहा है कि सायरा, मैं अपनी दुनिया में वापस जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तुम्हें कोई भी मुश्किल पेश आए तुम मुझे पुकारना, मैं तुम्हारी मदद को आ जाया करूंगा। सारा ने अपना ये ख्वाब अपनी माँ को सुनाया और फिर वो दोनों कारी साहब के पास पहुंचे और कारी साहब को भी ये ख्वाब सुनाया। काजी साहब ने कहा कि वो नेक जिन था और वो तुम्हारी मदद को जरूर आया करेगा। अगर तुम्हें कोई मदद की जरूरत तो वो तुम्हारी मदद को आ जाया करेगा। इस वाक़ये के बाद सायरा ने कभी शादी नहीं करवाई और जब भी वो फूल बेचने दरबार पर जाया करती थी तो उसको लगता था कि कोई इसका हिजाब ठीक कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही लगी घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको नई कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।